Now we discuss about the Bohr's atomic model. जरूरत ही क्यों पड़ी? After limitations of, you know that there are few limitations in Rutherford alpha ray scattering experiment. उसको ध्यान में रखते हुए नील्स बोहर ने अपना मॉडल दिया. He concluded that the classical mechanics and electromagnetism we can't apply it on the atomic scale. He cleverly combined classical and old concept of the mechanics, that means given by the Plancks. उसको कंबाइन करके उन्होंने कुछ अपने पोस्टुलेट तैयार किए, उससे उन्होंने एक मॉडल तैयार किया. बोहर ने जो क्लासिकल मैकेनिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बताया कि ये एटॉमिक स्केल पे अप्लाई नहीं कर सकते, क्लेवरली उन्होंने ज्वाइन कर दिया क्लासिकल और इसके अलावा क्वांटम, ओल्ड क्वांटम थ्योरी गिवन बाय द प्लैंक्स, और उसकी हेल्प से 3 पोस्टुलेट्स तैयार किए. तो फर्स्ट पोस्टुलेट, in an atom the center part is highly dense, whole charge is centered, is positively charged, almost whole mass is centered, known as nucleus, and negatively charged particles revolves around the nucleus in circular orbits. The required centripetal force provided by Coulombian force is the first postulate, means m v square over r equals to k z e square by r square is the first postulate. ये फर्स्ट इक्वेशन बन गया. ठीक. सेकेंड पोस्टुलेट, stability of the orbit depends on the stability of orbits. According to Bohr's, electron can revolve in certain stationary orbit only if its angular momentum equals to nh upon 2 pi. स्टेशनरी ऑर्बिट का मतलब होता है इन विच नो रेडिएशंस टेक्स प्लेस, नॉन एज स्टेशनरी ऑर्बिट्स. तो इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व इन सर्टेन स्टेशनरी ऑर्बिट ओनली इफ इट्स एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई. एल इक्वल्स टू एम वी आर इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 pi. It's the second equation. ठीक. Now third postulate. Discuss about the third postulate. Emission or absorption of the energy depends only when electron jump from one orbit to other orbit. Energy absorb होगी या release होगी, it depends on the electron jump from one orbit to other orbit. Electron absorb energy when it jump from inner to outer. Electron release energy when it jump from outer to inner. और जो एनर्जी रिलीज होगी that is of h nu. E2 minus E1. These are the Bohr's postulate. फिर से देख लो. फर्स्ट क्या था? द सेंटर पार्ट ऑफ द एटम हाईली डेंस, पॉजिटिवली चार्ज्ड, ऑलमोस्ट होल मास कंसंट्रेटेड, centered, known as nucleus, and negatively charged particles
revolves around the nucleus in circular orbit. When electron moves in a circular path, centripetal force required, the required centripetal force provided by the Coulombian force, mv square over r equals to k z square by r square. Second postulate, electron can revolve in certain stationary orbits. Stationary orbit का मतलब होता है non radiated orbit. No radiation takes place in the orbit known as stationary orbits. So electron can revolve in certain stationary orbit only if its angular momentum equals to nh upon 2 pi और एंगुलर मोमेंटम mvr भी होता है. थर्ड, एनर्जी रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी वो इस बात पर डिपेंड करेगी कि इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में किस डायरेक्शन में जंप कर रहा है. जब आउटर टू इनर आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, जब इनर टू आउटर जाएगा तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा. एब्जॉर्ब करने के बाद ही वो इनर टू आउटर जा पाएगा. जब आउटर टू इनर आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, और जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी व्हेन इट जंप फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अदर ऑर्बिट, इट विल बी h nu E2 minus E1. These are the Bohr postulates. और अब इनकी हेल्प से हम लोग बहुत सारी चीजें निकालेंगे. रेडियस ऑफ द ऑर्बिट निकालना है, फिर वेलोसिटी ऑफ द ऑर्बिट, फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑर्बिट, ठीक है, और टोटल एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट, ओरिजिन ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइंस, बहुत सारी चीजें डिस्कस करनी है. तो पहले लेके चलने हम लोग रेडियस ऑफ ऑर्बिट. रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, ठीक. तो यहां से देखें आप, एम वी आर इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई, वी क्या मिलेगा, एन एच अपॉन 2 पाई एम. पुटिंग द वैल्यू ऑफ वी इन फर्स्ट इक्वेशन, के जेड स्क्वायर बाई आर इक्वल्स टू एम, और वी की वैल्यू लगा दो एन एच अपॉन 2 पाई एम का स्क्वायर, और के जेड स्क्वायर बाई आर इक्वल्स टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम. ठीक. तो यहां से हमें r मिल जाएगा, r इक्वल्स टू के जेड स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर के जेड स्क्वायर बाई आर स्क्वायर था, m, और यहां पर v की वैल्यू लगा दी एन एच अपॉन 2 पाई एम. ठीक है. तो अब इसको सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, फिर से देख लो, एम वी आर इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई, तो वी क्या मिलेगा, एन एच अपॉन 2 पाई एम, एन एच अपॉन 2 पाई एम इंटू आर भी आएगा. वी इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई एम आर, यहां पर हो जाएगा आर स्क्वायर. ठीक. के जेड स्क्वायर ओवर आर, क्योंकि एक आर से आर कैंसिल हो जाएगा, एम, और फिर हमने यहां पर वी की वैल्यू लगा दी. ठीक है. तो मिला के जेड स्क्वायर बाई आर इक्वल्स टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम आर स्क्वायर. एक आर से आर भी कैंसिल हो गया, तो अब आर मिलेगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर के जेड स्क्वायर. ये रेडियस ऑफ द ऑर्बिट आ गई. सो इट इज क्लियर
r is directly proportional to n square. Radius is directly proportional to n square. It indicates that orbits are not equally spaced. Orbits are not equally spaced because r is directly proportional to n square. ठीक, तो ये रेडियस ऑफ द ऑर्बिट आ गई। और अब निकालना है वेलोसिटी ऑफ द ऑर्बिट। अब वेलोसिटी निकालना है हम लोग। तो वेलोसिटी के लिए आप देखें, यहां से r मिलेगा, फर्स्ट इक्वेशन से r क्या मिलेगा कि ZE स्क्वायर ओवर mv स्क्वायर, और सेकंड पोस्टुलेट से r क्या मिलेगा NH अपॉन 2 पाई mv। दोनों को इक्वेट कर दो तो कि ZE स्क्वायर अपॉन mv स्क्वायर कस टू NH अपॉन 2 पाई mv। ठीक है, तो v मिलेगा 2 पाई के ZE स्क्वायर बाई NH। ठीक, m से m कैंसिल हो गया, एक v से v कैंसिल हो गया, यहाँ 2 पाई बचा, तो 2 पाई के ZE स्क्वायर ओवर NH। ये वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया, द वेलोसिटी ऑफ द ऑर्बिट। फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं हम लोग। फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑर्बिट आपको पता है v इक्वल्स टू r ओमेगा होता है, ओमेगा 2 पाई न्यू होता है। सो न्यू इक्वल्स टू v अपॉन 2 पाई r। v की वैल्यू लगा दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ v, तो न्यू मिलेगा 1 अपॉन 2 पाई r, और अब v की वैल्यू लगा दो 2 पाई के ZE स्क्वायर ओवर NH, और n इक्वल्स टू के ZE स्क्वायर ओवर NHR। ये फ्रीक्वेंसी हो गई। ठीक, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑर्बिट। और अब हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं टोटल एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट। ठीक, टोटल एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट। टोटल एनर्जी ऑफ ऑर्बिट काइनेटिक एनर्जी भी होगी और पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी। नाउ काइनेटिक एनर्जी, यहां से देखें आप, फर्स्ट इक्वेशन से देखें तो mv स्क्वायर आपको मिल रहा है कि ZE स्क्वायर ओवर r, हाफ mv स्क्वायर मीन्स काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी कि ZE स्क्वायर ओवर 2r।
ये काइनेटिक एनर्जी हो गई। नाउ पोटेंशियल एनर्जी के जेड ई इंटू माइनस ई बाई आर, और इट इज माइनस के जेड ई स्क्वायर ओवर आर इज द पोटेंशियल एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी होगी और ये पोटेंशियल एनर्जी होगी। नाउ टोटल एनर्जी के जेड स्क्वायर ओवर 2r माइनस के जेड स्क्वायर ओवर आर, टोटल एनर्जी क्या मिलेगी? माइनस के जेड ई स्क्वायर ओवर 2r इज द टोटल एनर्जी। और अब इसको लेके चलना है हम लोग आर की वैल्यू पुट कर दो। ये इन टर्म्स ऑफ आर है, तो आर की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। चलो आर की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो टोटल एनर्जी बनेगी जाके माइनस के जेड ई स्क्वायर ओवर 2। अब हमें आर की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। यहां पे आर की वैल्यू पुट कर दो, एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर के जेड ई स्क्वायर। ये आर की वैल्यू लगा दी, एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर के जेड ई स्क्वायर, ठीक। और इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा माइनस 4 पाई स्क्वायर के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई पे पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक है। तो टोटल एनर्जी यहां पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब मिलेगी माइनस 4 पाई स्क्वायर के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई पे पावर 4 बाई 2 एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक। और हम लोग लेके चल रहे हैं ओरिजिन ऑफ द, ठीक, ओरिजिन लेके चल रहे हैं ऑर्बिट्स का। दोबारा देख लो सारा कुछ। तो बोहर पोस्टुलेट जानो क्या है? फर्स्ट, सेंट्रल पार्ट इज पॉजिटिव हाईली डेंस्ड ऑलमोस्ट होल मास सेंटर्ड known as nucleus. Negatively charged particles revolves around the nucleus in circular orbits. Required centripetal force provided by the Coulombian force. Second, electron can jump. Now, electron can move or revolve in certain stationary orbit only if its angular momentum equals to nh upon 2 pi, or that is mvr. इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि वो इनर टू आउटर जा रहा है या आउटर टू इनर जा रहा है। और जो भी एनर्जी रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी, इट विल बी एच न्यू E2 माइनस E1। दीज आर द 3 पोस्टुलेट्स। और अब हमें कुछ एक डेरिवेशंस निकालने थे। तो पहला निकालना था रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। तो हमने क्या किया, mvr इक्वल्स टू nh अपॉन 2 पाई ले लिया। यहां से v निकाला तो nh अपॉन 2 पाई mr आ गया। इसी v की वैल्यू मैंने यहां लगा दी, ठीक है। तो k जेड स्क्वायर ओवर आर, एक r से r क्या कैंसिल हो चुका है। m जो v स्क्वायर था वहां पर हमने ये वैल्यू लगा दी, nh अपॉन 2 पाई mr। तो k जेड स्क्वायर ओवर r इक्वल्स टू n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर mr स्क्वायर। एक और r से r कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से r मिलेगा हमें n स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन
4 पाई स्क्वायर के जेड ई स्क्वायर। तो यहां से एक चीज और मिल गई, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। दैट मीन्स द ऑर्बिट्स आर नॉट इक्वली स्पेस्ड। 1 2 3 का स्क्वायर बनेगा, 1 4 9 ऐसे चलेगा। सो ऑर्बिट्स आर नॉट इक्वली स्पेस्ड। अब हमें निकालनी है वेलोसिटी ऑफ द ऑर्बिट। तो क्या किया हमने, फर्स्ट पोस्टुलेट से आर निकाला, के जेड स्क्वायर बाई एम वी स्क्वायर। यहां से आर निकाला, एन एच अपॉन 2 पाई एम वी। दोनों को इक्वेट कर दिया, के जेड स्क्वायर बाई एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई एम वी। अब यहां से जब वी निकालेंगे, एक से वी कैंसिल हो जाएगा, तो 2 पाई के जेड ई स्क्वायर ओवर एन एच, ये वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया। अब हमें फ्रिक्वेंसी ऑफ द ऑर्बिट निकालनी थी। वी इक्वल्स टू आर ओमेगा होता है और ओमेगा 2 पाई न्यू होता है, तो न्यू आएगा वी अपॉन 2 पाई आर। यहां वैल्यू पुट कर दी, वी की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। तो 1 अपॉन 2 पाई आर और वी की वैल्यू क्या है, 2 पाई के जेड ई स्क्वायर ओवर एन एच। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, के जेड ई स्क्वायर ओवर एन एच आर। ये आर के टर्म्स में फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आ गया। अब हमें टोटल एनर्जी निकालनी है ऑर्बिट की, काइनेटिक एज वेल एज पोटेंशियल। तो काइनेटिक एनर्जी यहां से निकाल दी हमने, एम वी स्क्वायर क्या मिलेगा, के जेड ई स्क्वायर बाई आर, हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो के जेड ई स्क्वायर ओवर 2 आर हो गया। पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी के जेड ई, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है तो माइनस ई इंटू आर, तो पोटेंशियल एनर्जी मिली माइनस के जेड ई स्क्वायर ओवर आर। टोटल निकालेंगे तो आर के टर्म्स में क्या आ गया, माइनस के जेड ई स्क्वायर ओवर 2 आर। फिर हमने आर की वैल्यू पुट कर दी, यहां आर की वैल्यू पुट कर दी, तो के जेड ई स्क्वायर ओवर 2 आर मतलब एन स्क्वायर एच स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर के जेड ई स्क्वायर। सॉल्व करा तो मिला माइनस 4 पाई स्क्वायर के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई पावर 4 अपॉन 2 एन स्क्वायर एच स्क्वायर। तो कुल मिला के टोटल एनर्जी मिल गई माइनस 4 पाई स्क्वायर के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई पावर 4 अपॉन 2 एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक है। और अब लेके चल रहे हैं हम लोग ओरिजिन ऑफ द ऑर्बिट, ठीक है। ओरिजिन लेके चल रहे हैं हम लोग, जो स्पेक्ट्रल लाइंस थी ना उनका ओरिजिन लेके चल रहे हैं हम लोग। तो ओरिजिन ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइंस, इससे आप इसको साफ कर रहे हैं। origin of spectral lines. तो आपको पता है एच न्यू इक्वल्स टू ई टू माइनस ई वन, ये वैल्यूज लगा दो। एच सी वाई लैम्डा इक्वल्स टू सी वाई लैम्डा माइनस 4 पाई स्क्वायर के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई पावर 4 अपॉन 2 एच स्क्वायर, कॉमन हो गया, ये बन गया। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, टू सी एच क्यू वन अपॉन एन टू स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन वन स्क्वायर। अब यहां से हम लोग डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस को डिस्कस करेंगे। तो देखो इसको,
डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। तो फर्स्ट, चलो इसको भी साफ करके एक जगह लिख देते हैं इसको, चलो और भी जान लो इसको। एक ये फॉर्मूला बन गया और इसको रेडबर्ग कांस्टेंट के टर्म्स में लिख देते हैं। in terms of Rydberg constant. The Rydberg, R is the Rydberg constant, ठीक। अब यहां से हम लोग अलग अलग स्पेक्ट्रल लाइंस डिस्कस करेंगे। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, अगर हाइड्रोजन एटम को लेके चल रहे हो तो Z1 हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हो, ठीक। तो फर्स्ट है लाइमन सीरीज। फर्स्ट इज लाइमन सीरीज, साथ साथ यहां बना के भी दिखाते जा रहे हैं आपको। If electron jump in first orbit from any outer orbit, का मतलब है n1 1 होगा और n2 2 3 and so on, तो आपको लाइमन सीरीज मिलेगी। इज लाइमन सीरीज, और से जो भी रेज इमिट होंगी, एनर्जी मिलेगी, यूवी रेज होंगी, वो अल्ट्रावायलेट रीजन की होंगी। यूवी रेज, ठीक। लाइमन के लिए क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम एनी आउटर ऑर्बिट टू इनर मोस्ट ऑर्बिट, एंड n1 इक्वल्स टू 1 एंड n2 इक्वल्स टू 2 3 एंड सो ऑन। और जो रेज होंगी या एनर्जी रिलीज होगी, दैट इज अल्ट्रावायलेट रीजन की होगी। सेकेंड, ठीक है, बामर सीरीज। इलेक्ट्रॉन जंप टू सेकेंड ऑर्बिट फ्रॉम एनी आउटर ऑर्बिट, ठीक। n1 तो 2 होगा और n2 3 4 एंड सो ऑन। और इससे जो एनर्जी रिलीज होगी वो विजिबल रीजन की होगी। विजिबल, यहां से दिखाओ उसको, ये बामर सीरीज हो गई, ठीक। थर्ड होगी पाश्चन सीरीज।
Third is Paschen series. Electron jump to third orbit from any outer orbit. N1 3 हो गया और N2 क्या होगा 4 5 एंड सो ऑन। और इससे जो एनर्जी रिलीज होगी वो इंफ्रारेड रीजन की होगी, इंफ्रारेड पास्चन में। तो इसको यहां ऐसे दिखाएंगे, पास्चन सीरीज, ठीक। और अब फोर्थ लेके चल रहे हैं हम लोग, ब्रैकेट सीरीज। इट्स फोर्थ, इलेक्ट्रॉन जंप टू फोर्थ ऑर्बिट फ्रॉम एनी आउटर ऑर्बिट। अगेन जो एनर्जी रिलीज होगी वो इंफ्रारेड रीजन की होगी। The next one is P fund series. In P fund series, अच्छा ब्रैकेट सीरीज को भी यहां से दिखा दो। ये ब्रैकेट सीरीज होगी। P fund series, इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम एनी आउटर ऑर्बिट टू फिफ्थ ऑर्बिट। अगेन इंफ्रा, ये डीप इंफ्रा होते चले जाएंगे। तीनों इंफ्रा चल रहे हैं लेकिन डीप इंफ्रा होते चले जाएंगे। और यहां पर हम लोग दिखाएंगे इसको इस तरह, पी फंड सीरीज। तो इस तरह दीज आर द स्पेक्ट्रल लाइंस, डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस। फर्स्ट क्या थी, लाइमन सीरीज, इलेक्ट्रॉन जंप टू फर्स्ट ऑर्बिट फ्रॉम एनी आउटर ऑर्बिट। N1 1, N2 2 3 एंड सो ऑन। और जो एनर्जी रिलीज होगी वो अल्ट्रावायलेट रीजन की होगी। बामर सीरीज, इलेक्ट्रॉन जंप टू सेकेंड ऑर्बिट फ्रॉम एनी आउटर ऑर्बिट। N1 2 हो गया, N2 जाएगा 3 4 एंड सो ऑन। जो एनर्जी रिलीज होगी वो विजुअल रीजन की होगी। साथ साथ हम ये ग्राफ भी बनाते चले जाते हैं, एक और डायग्राम बनाते चले जा रहे हैं, ऑर्बिट डायग्राम। नेक्स्ट है पास्चन सीरीज, इलेक्ट्रॉन जंप टू थर्ड ऑर्बिट फ्रॉम एनी आउटर ऑर्बिट 4 5 एंड सो ऑन। दिस टाइम एनर्जी विल बी ऑफ इंफ्रारेड रीजन। ब्रैकेट सीरीज, इलेक्ट्रॉन जंप टू फोर्थ ऑर्बिट फ्रॉम एनी आउटर ऑर्बिट 5 6 एंड सो ऑन। एनर्जी विल बी ऑफ अगेन इंफ्रारेड, डीप होती चली जाएगी। यहां इस तरह दिखा दिया। नेक्स्ट वन इज द पी फंड सीरीज, N1 5, N2 6 7 and so on. Again energy of infrared region. So these are the different spectral lines explained by the Bohr. Clear?